Good morning, everyone. Good morning. So today we are going to deal with another topic, which is one of the topic from the chapter life processes only. Okay, that is regarding transportation in case of plants, right? We have studied about what various life processes, various systems, digestive system, respiratory system, even circulatory and transportation system in case of humans. Okay, and today we are going to deal with transportation system only, but in case of plants. So the topic is transportation in plants. As the name says, transportation. What do you mean by the term transportation? That is nothing but what? Conduction. Okay, transportation or conduction of some materials. Obviously the materials that is necessary for the growth or for the survival of what? Plants, right? तो plants के growth के लिए, उनके survival के लिए it requires certain minerals, right? Water as well as glucose or the sugar. Okay, that is nothing but the food. So obviously ये सारी चीज़ें उसको ज़रूरत है, but ये सारी चीज़ों का transportation as well as translocation is must, है ना? Like we have blood vessel, blood, heart, blood vessels. These are the components of what? Transportation system in case of humans, in case of animals. So similar kind of transportation system, obviously it is not possible that plants के अंदर भी same heart, blood vessels and the blood, ये सारी चीज़ें तो heart में obviously this आपके plants में तो है नहीं. So which type of transportation system is needed? Obviously कुछ तो भी इनके पास कुछ tissues रहेंगे, right? We know already कि plants are made up of many kind of dead cells, है ना? ये हमको पता है. Supporting cells, supporting tissues जो है इनके लिए for the support which is given to the plants, that is by what? Dead cells only. So this plants mainly composed of dead cells, है ना? तो यहाँ पर जो है we are going to deal with what? Conducting tissues. So we already know कि there is vascular bundles or the vascular tissues, or you can also call it as conducting tissues. Okay, जिसके अंदर क्या आ जाएंगे आपके? Xylem and phloem. Okay, क्या आ जाएगा conducting tissues में? Xylem and phloem. तो इन दोनों के बारे में हमको डिस्कशन करना है. तो वी शुड नो द फंक्शन ऑफ जाइलम एज वेल एज फंक्शन ऑफ फ्लोएम. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल यस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम द रूट्स, ओके, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब रूट में भी जाने के लिए उसको कहीं में से तो किसी में से तो जाएगा. सो दैट सोर्स इज व्हाट? सॉइल. वेरी गुड, राइट, दैट सोर्स इज सॉइल. वाटर और मिनरल दोनों भी किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर. वहाँ से किसके अंदर जाना है? प्लांट के रूट्स के अंदर. रूट से कहाँ पे जाना है? प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक. यस, सो दैट इज मेनली कंडक्टेड बाय द कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज जाइलम. ओके, वेरी गुड. Now what about other substances? कुछ और भी substances है, that is food हो गया, that is in the form of sugar, right? Then what? अमीनो एसिड्स हो गए, सम अदर सब्सटेंसेस हो गए. तो ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है, पहले तो ये बनना ज़रूरी है. तो बाय विच प्रोसेस फूड इज सिंथेसाइज इन द प्लांट्स? वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस. एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? लीव्स, राइट. लीव्स में भी कौन सा सेल ऑर्गेनल? क्लोरोप्लास्ट. ओके, इन दैट what which pigment is present? क्लोरोफिल, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट, है ना. ये सारी चीज़ें हमको पता है. तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. अब वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसलोकेशन. ओके, तो वहाँ से ट्रांसलोकेट होके वो कहाँ जाएगा? अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में. ओके, तो यही दोनों को जो है ये ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ food and other substances, how it is taking place in the plants, that we are going to study. Is that clear? Yeah, in short we have discussed what actually transportation system consists of in case of plants. Okay, तो देखो one by one we will discuss. Soil is the nearest and richest source of what? Obviously water and minerals. ठीक है. So if the distance between roots and leaves are small, ये एक केस डिस्कस किया है आपसे कि if suppose we have very short plants, okay, बहुत छोटा सा अगर एक प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है उस प्लांट का जो रूट है, उसका जो लीव्स है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? काफ़ी कम रहेगा, राइट. स्मॉल प्लांट्स में तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम रहेगा, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मैकेनिज्म का नीड नहीं रहेगा कि ड्यू टू विच यू नो ट्रांसपोर्टेशन, उनका बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़, उनमें कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है. सो डायरेक्टली उनके अंदर कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन? बाई मीन्स ऑफ
डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू जो है स्मॉलर प्लांट्स में क्या हो जाएगा, सारा जो उनका प्रोसेस है, मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जिस भी सब्सटेंस का मूवमेंट होना है इट विल टेक प्लेस इन द स्मॉलर प्लांट्स। बट व्हाट अबाउट लार्जर प्लांट्स, है ना, तो उनके लिए तो एक वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज मस्ट। तो उनके जो जिनका हाइट रूट से लेकर लीव्स तक या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, राइट, ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर डिस्टेंस है, तो इन दैट केस, इन केस ऑफ लार्जर प्लांट्स, लार्जर ट्रीज एंड ऑल, तो उनको पानी, वाटर, मिनरल्स एज वेल एज फूड, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो देर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स, ओके, वहाँ पे रूट प्रेशर आ जाएगा, वहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल एक आ जाएगा, ठीक है, कैपिलरी एक्शन आ जाएगा, थ्रू विच दी जाइलम कुड एबल टू कंडक्ट दी वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो ये किसके इसमें याद रखना है आपको, इन केस ऑफ लार्जर प्लांट्स, ओके, जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। ओके, तो उनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म जो है फॉलो होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो देखो, इन केस ऑफ smaller plants, what will happen, the distance between the roots and the leaves is very small, so energy and raw materials can easily diffuse, है ना। इस केस में किसके थ्रू हो जाएगा, इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉलर प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस हेल्प करेगा, डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो हो जाना है, राइट। सो बट फॉर अ लार्ज डिस्टेंस, अगर लार्जर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं तो वेल डिफाइंड उनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नेसेसरी, इट इज असेंशियल। ओके, तो इनको ज़्यादा मैकेनिज्म जो है फॉलो करना पड़ेगा। प्लांट्स डू नॉट मूव, ऑब्वियसली प्लांट्स को लोकोमोशन होता है क्या प्लांट्स में, नो, ठीक है, दे आर स्टेशनरी। प्लांट्स लिविंग है या नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली लिविंग, बट दे आर स्टेशनरी, वो एक ही प्लेस पर रहकर अपना जो भी काम है दैट वर्क इज डन बाय दैट पर्टिकुलर प्लांट्स। ओके, बट दे कांट एबल टू मूव, बट उनके अंदर एनॉर्मस बहुत ज़्यादा क्या है, डेड सेल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स जो है दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। ओके, सो डेड सेल्स, सो दे नीड ओनली लो एनर्जी। अब इनमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का नीड नहीं है, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ओके, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में द एनर्जी इज कंजर्व्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और फिर जब ये एटीपी जो है इसमें से एक फॉस्फेट रिलीज होता है तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी ऑल्सो। ओके, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, यस और नो, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स व्हाट हैपेंस, इट रिक्वायर्स वेरी low energy, okay, less energy, and so slow transportation system works over there, but लगेगा तो ज़रूर, ठीक है। transportation system is followed, but it is different from the human beings, okay। so if the question is asked कि you need to explain the transportation process in case of plants, तो आपको water का, mineral का, as well as food का transportation as well as translocation with the help of xylem and phloem tissue respectively, that you need to explain, is that clear? उसको पूरा आपको explain करना पड़ेगा, xylem का रोल, phloem का रोल, ठीक है, then आपके पूरे mechanisms, capillary action, then what is root pressure, what is transpirational pull, ये सारे जो points है आपको one by one करके हम discuss करेंगे यहाँ पे, and same points you need to write down in your paper also, okay, if the question is asked regarding transportation in case of plants, is that clear? Very important question from the exam point of view, कि it can be asked in your exam कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है प्लांट्स के अंदर। ओके, सो नाउ सी, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स टू इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। व्हाट आर द कंडक्टिंग ट्यूब्स? जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। उसके फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, phloem responsible for the transportation of what? Food. Okay, products of photosynthesis, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज ही आना है, right? That is nothing but what? Sugar. तो soluble product जो है ना, transportation of transports soluble products of what? Photosynthesis, that is nothing but glucose or the sugar. Okay, सुक्रोज के फॉर्म में ये क्या होगा? ट्रांसलोकेट होगा, ठीक है। फ्रॉम लीव्स, लीव्स में ही बन रहा है फूड का, फूड जो है in case of plants where it is formed inside the leaves only, ठीक है। तो leaves से कहाँ जाएगा? other parts में, in the upward direction also, in the downward direction also। तो अगर हम फ्लोएम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे टू वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, टू वे ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम की बात करते हो तो इट इज शोइंग ओनली वन वे ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ओनली वन वे ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ये जो जाइलम है आपका एक ही डायरेक्शन में लेकर जाता है वाटर एंड मिनरल्स को, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी। इज दैट क्लियर?
ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी कि जो है दिस फ्रॉम द रूट्स वाटर एंड मिनरल्स एंटर्स इनसाइड द फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, प्लीज लिसन, फ्रॉम द सॉइल द वाटर एज वेल एज मिनरल्स, ठीक है, गो इनसाइड द रूट्स, है ना। अब रूट से जो है आपका जाइलम की अगर हम बात करें तो देखो खाली अपवर्ड डायरेक्शन, ओनली वन वे ट्रांसपोर्टेशन ये शो कर रहा है टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वही अगर फ्लोयम की बात करोगे तो फ्लोयम बेसिकली फूड बना रहा है इनसाइड द लीव्स, ओके, इन द लीव्स, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स। तो ये जो यहाँ पे बना रहा है तो फ्रॉम द लीव्स अपर पार्ट में भी जा रहा है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोयम टिश्यू, ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक बार देख लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अगर जाइलम की हम बात करें तो मेनली जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, वाटर जो है एंड प्लस यहाँ पे मिनरल्स जो है, ठीक है, तो मिनरल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, फाइन, आयंस जो है आयंस के फॉर्म में पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे, फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स, ओके। अब ये यहाँ पे चले जाएंगे तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, अब इनसाइड द रूट्स। तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से, यहाँ पर आपको अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फ्रॉम द सॉइल टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इनसाइड द रूट्स, ओके। अब रूट के अंदर आयन ज़्यादा बढ़ गया है, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हैज़ बीन क्रिएटेड, ओके। तो इस वजह से वाटर का मूवमेंट होना शुरू होगा फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स। अब जैसे ही मूवमेंट होगा तो कौन से प्रोसेस से होता है ये मूवमेंट, from the higher concentration to lower concentration, water will start moving from soil to the root by the process of osmosis. Very good, okay, by the process of osmosis. अब जैसे ही यहाँ पर water का movement होगा तो xylem will carry the what, water, है ना। क्यों, यहाँ पे एक मैकेनिज्म हो रहा है दैट इज रूट प्रेशर, ठीक है। देखो जैसे ही वाटर जो है सॉइल से रूट के अंदर आएगा तो द प्रेशर विल इंक्रीज। अब हमको पता है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा कोई चीज़ अपवर्ड में वो क्या होगा, पुश होगा ना, ठीक है। तो रूट प्रेशर की वजह से उसके पहले एक और यहाँ पे आएगा कैपिलरी एक्शन, ओके। दो चीज़ें यहाँ पे ही समझ लो, कैपिलरी एक्शन यहाँ पे काम कर रहा है एंड सेकंड जो है रूट प्रेशर काम कर रहा है, ओके। रूट प्रेशर की एक थ्योरी होती है जिसमें वही चीज़ एक्सप्लेन किया होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द रूट्स इट विल गेट अपलिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ व्हाट, जाइलम, ओके। तो जाइलम क्या करेगा, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होती है। कैपिलरी एक्शन जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर आपने लिया है, उसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट किया है, कैपिलरी ट्यूब, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू धीरे धीरे कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। सो सेम कैपिलरी एक्शन यहाँ पे कौन शो कर रहा है, जाइलम, ओके। जाइलम कैसा एक्शन शो कर रहा है, कैपिलरी एक्शन, ओके। सो इट विल मूव द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन में ये लेकर जाएगा। इज दैट क्लियर? अब थर्ड थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पर ये जाएगा लीव्स तक भी जाने वाला है ये ऑब्वियसली, ठीक है। एंड वी नो दी प्रोसेस कि लीव्स में जो है एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर होता है, इन दैट स्टोमाटा इज प्रेजेंट, ओके। अब स्टोमाटा में गैसियस एक्सचेंज होता है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा प्लस ट्रांसपीरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच water is evaporated from the aerial parts of the plants। अब एरियल पार्ट्स कौन सा है, बेसिकली लीव्स होंगे, ठीक है। तो लीव्स में से वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा, स्टोमाटा ओपन होगा तो वाटर का लॉस होगा। सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसपीरेशन। अब वो ट्रांसपीरेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक और थर्ड यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है दैट इज ट्रांसपीरेशनल पुल, ओके, वेरी गुड, ट्रांसपीरेशनल पुल। अब ये यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। डे टाइम पे हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, और जो है स्टोमाटा विल बी ओपन, और स्टोमाटा ओपन होगा तो वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी इनसाइड दी प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से एक पुल जनरेट हो रहा है क्योंकि इसको वाटर का नीड है। सो दैट प्रोसेस थर्ड वाला आ जाएगा मैकेनिज्म, ट्रांसपीरेशनल पुल। इज दैट क्लियर? ये तीनों भी आपको क्लियर हुआ, कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशनल पुल। तो सक्शन फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू विच क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, इट विल मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके। तो ट्रांसपीरेशनल पुल के वजह से भी जनरेट होगा तो वाटर वापस अपलिफ्ट होगा और डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। और कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर तो हम देख ही चुके हैं। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड, ठीक है।
अब ये एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया है, ठीक है, टू शो के ट्रांसपिरेशन, लिसन हाउ ट्रांसपिरेशन एक्चुअली अकरिंग। तो हमने इसमें दो पॉट्स लिया है, पॉट 1 एंड पॉट 2। पॉट 1 में आप देख रहे हो कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, प्लांट, है ना। पॉट 2 में इट इज विदाउट प्लांट, एक स्टिक है खाली, ठीक है। बोथ दिस आर कवर्ड बाय दी एक शीट, राइट, प्लास्टिक शीट। अब इसमें क्या होना है, इसको सनलाइट में हमने रख दिया है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली सनलाइट अगर मिलेगा तो इसमें ऑब्वियसली क्या होना शुरू होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी होगी, राइट, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इस लीव्स में से क्या लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, राइट। और वाटर लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे जाएंगे, ये तो कवर्ड है ना, कवर्ड है तो इस प्लास्टिक के शीट में ही आपको दिखेगा कि नहीं, राइट। तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स, इट इज इंडिकेटिंग दैट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हैज बीन अकर्ड इन फर्स्ट पॉट। वही अगर सेकेंड पॉट में देखोगे तो देर इज नो प्लांट, अब प्लांट ही नहीं है तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, एंड इफ देर इज नो ट्रांसपिरेशन तो वहाँ पे वाटर लॉस कहाँ से होगा, वाटर लॉस अगर नहीं होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आएंगे शीट के ऊपर, राइट। सो दैट इज वाई दिस एक्टिविटी सेज दैट योर transpiration occurred in pot 1 due to the presence of what, plant, and that also leaves. Okay, is that clear? ठीक है, ये डे टाइम एंड नाइट टाइम का बताया है आपको। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑब्वियसली स्टोमाटा विल बी व्हाट, ओपन। स्टोमाटा ओपन रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होगा, जनरेट होगा, एंड ड्यू टू विच वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, अब अगर नाइट टाइम की हम बात करें तो स्टोमाटा आर जनरली क्लोज्ड। अब क्लोज रहेगा तो ट्रांसपिरेशन उतना होगा ही नहीं एज सच, ठीक है, उतना ज़्यादा होगा नहीं। तो ट्रांसपिरेशन ही नहीं हो रहा है तो हाउ डज ट्रांसपिरेशन पुल विल बी जनरेटेड, होगा क्या, जनरेट नहीं होगा। और नहीं होगा तो उसमें कौन सा, फिर भी उसको वाटर का तो नीड है, 24 आवर्स उसको चाहिए वाटर। तो कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म शो करेगा आपको नाइट टाइम में, अगर हम बात करें ड्यूरिंग द नाइट टाइम तो रूट प्रेशर, है ना, रूट प्रेशर ज़्यादा काम करेगा इसमें फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, वाटर। फाइन, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। ओके, तो इसमें वी नीड टू स्टडी अबाउट व्हाट, फ्लोएम। ये हमने ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्शन में देखा, बट थोड़ा सा और देख लो कि देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज नथिंग बट द फूड और द ग्लूकोज और द शुगर, ठीक है, जो कि ट्रांसलोकेट हो रहा है फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, जिसमें सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है दैट इज फूड, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका कंडक्शन हो रहा है, उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है। सो दैट इज वाई दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? ट्रांसलोकेशन, आपको जब भी फ्लोएम का रोल बताओगे तो यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसलोकेशन। जब आप जाइलम का बताओगे तो यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, उसमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट यू नीड टू एक्सप्लेन। सो देखो, ये तो हमने बोला फ्लोएम की मदद से हो रहा है। सो फ्लोएम कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एज वेल एज अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कौन सा वे ट्रांसपोर्टेशन है, वन वे या टू वे? टू वे। जाइलम केस में हमने देखा एज सच एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना नहीं रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट इज देयर। ओके, तो इसमें लोडिंग होगा सबसे पहले तो जो आपका लीव्स है, अब उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो वो तो फ्लोएम के आपका कंपेनियन सेल्स के थ्रू जा रहा है। ओके, हियर वी कैन सी, ठीक है, देखो, ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, है ना, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, इसकी मदद से क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन तो हो रहा है, फाइन, बट ये किसके अंदर जा रहा है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर। अब उसमें तो बढ़ जाएगा ना, उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर अभी बढ़ रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन शुगर या सोल्यूट का बढ़ जाता है तो क्या एंटर करना चाहिए उसके अंदर, वाटर, राइट। तो कहाँ से जाएगा वाटर, जाइलम से। ओके, सो फ्रॉम दी जाइलम, यहाँ पे यू कैन सी, ठीक है, जाइलम से जो है एंटर कर रहा है इनसाइड द फ्लोएम, क्या एंटर कर रहा है, वाटर। ओके, अब जैसे यहाँ पे प्रेशर फिर से क्या हो गया, इंक्रीज, हाई प्रेशर हो गया। ओके, हाई प्रेशर, शुगर हैज बीन लोडेड इनसाइड दिस फ्लोएम टिश्यू विद द हेल्प ऑफ सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, कंपेनियन ट्यूब्स एंड ऑल, कंपेनियन सेल। अब जैसे इसके अंदर आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया शुगर का। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हमको पता है, राइट। ये इसमें जैसे ही चला जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब उसी प्रेशर, इंक्रीज इन द प्रेशर कुड रिजल्ट इन टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम
where to where? From the phloem tissue to other parts of the plants. Is that clear? So this was about the translocation of what? Food, okay, in case of plants. So we have studied about transportation of water and minerals and translocation of food, okay, by phloem, and transportation of minerals and water by xylem, okay. So with this we have completed which topic? Transportation in plants, okay. Thank you.